یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ 10 فروری کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ ایران میں کسی فضائی حملے کے ذریعے حکومت ختم نہیں کی جائے گی، ترک وزیر خارجہ کا دعویٰ۔ آپ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ریپبلکن سینیٹر کا ترک وزیر خارجہ کو جواب۔ بنگلہ دیش میں الیکشن، انتخابی مہم کا وقت ختم۔ یہ مناظر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے ایک جلسے کے ہیں، ایسے مناظر جن کا 2 سال پہلے تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر دیا۔ عمران خان سے جیل میں ملاقات کر کے ان کی حالت کے بارے میں رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نے بانی PTI کے وکیل سلمان صفدر کو عدالتی دوست فرینڈز آف کورٹ کے طور پر جو ہے وہ یہ حکم دیا ہے کہ وہ آج ہی اڈیالہ جیل جائیں گے، وہاں پر بانی PTI سے ملاقات کریں گے اور ان کی حالت زار یا ان کے جس حال میں ان کو رکھا گیا ہے اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کیمپ پر جمع کروائیں گے۔ 20 سال بعد پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بسنت کی واپسی، جانیے پنجاب حکومت نے کیا کھویا کیا پایا۔ دیکھیں، یہ سیاسی طور پہ ایک بہت بڑا جوا تھا مریم نواز کے لیے، اور رسک تھا جیسے آپ نے کہا، اور بولڈ سٹیپ تو تھا، لیکن جوا اس لیے تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر ڈور پھر جاتی تو پھر ان کی سیاست بھی بہت زیادہ مشکل میں آ جاتی۔ یہ بھی جانیے کہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کیوں واپس لیا، اور یہ بھی کہ پکانے سے پہلے مرغی دھونا درست ہے یا خطرناک۔ The sink can be a source of cross-contamination. اس کے علاوہ دیکھیے پاکستان میں پہلا فارمولا اسٹوڈنٹ مقابلہ، طلباء کی انجینئرنگ صلاحیتوں کا عملی امتحان۔ پاکستان میں اس طرح کا پہلی بار ایونٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اراؤنڈ 36 ٹیمز ہیں جو پورے پاکستان سے ٹریول کر کے یہاں یہ کمپیٹ کرنے فرام کراچی ٹو پشاور۔ اور سنیے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات۔ اتنا بھولا تھا وہ انسان جس نے کرکٹ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جنٹل مینز گیم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں اور موضوعات بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطہ ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ CNN ترک کو ایک انٹرویو کے دوران ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر اردوغان اس مسئلے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہماری تمام کوششوں کا مقصد فوجی تنازع کو روکنا ہے۔ ایران میں احتجاج اور اس دوران ہونے والی ہلاکتوں کے بعد حکومت میں تبدیلی کے مطالبے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حاکان فیدان نے کہا کہ ان کی رائے میں ایران میں کسی فضائی حملے کے ذریعے حکومت ختم نہیں کی جائے گی، بلکہ ملکی نظام کو کمزور کیا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کے دوران امریکی وزیر خارجہ کی ایک کال کے بارے میں بھی بات کی اور بتایا کہ کس طرح مارکو روبیو نے انہیں ایران پر حملے کے بارے میں اطلاع دی تھی اور انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب کو اس بارے میں فوری طور پر آگاہ کیا تھا۔ امریکی کانگریس میں ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے ترک وزیر خارجہ کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آیت اللہ اور ان کی قاتل حکومت کو اقتدار میں رہنے دینا چاہیے تو آپ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ لنڈسے گراہم نے ایکس پر اپنے خیالات کا اظہار ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے اس بیان کے بعد دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران میں کسی فضائی حملے کے ذریعے حکومت ختم نہیں کی جائے گی۔ اپنے پیغام میں لنڈسے گراہم نے لکھا کہ ہمارے نام نہاد علاقائی اتحادیوں کے لیے اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت کی طرف سے تمام تر دباؤ کے بعد آیت اللہ اور ان کی قاتل حکومت کو اقتدار میں رہنے دینا چاہیے تو آپ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ریپبلکن سینیٹر نے براہ راست ترکی، قطر اور مصر کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ایرانی عوام کے جائز مطالبات کو نظر انداز کرنے کی آپ کی خواہش میری نظر میں مکمل طور پر امریکہ کے قومی سلامتی
सलामती के मफादात और इंसानियत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। याद रहे कि इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक ईरान में दिसंबर के इख्तिताम में शुरू होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में सैकड़ों हलाकतें हुई हैं। ताहम इंटरनेट की बंदिश की वजह से दुरुस्त अदादोशुमार दस्तियाब नहीं। ईरानी हुकाम इन मुजाहिरों का जिम्मेदार इसराइल की तरफ से तरबियत याफ्ता अफराद को करार देते हैं, चाहे वो अंदरून मुल्क हों या बैरून मुल्क, और इसे 12 रोजा जंग का तसलसल करार देते हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया है। बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम बाज़ाबिता तौर पर 22 जनवरी को शुरू हुई थी। ताहम इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इसे वोटिंग से 48 घंटे कबल ख़त्म करना होता है। इसके मुताबिक इंतखाबी मुहिम का दौरानिया मंगल की सुबह 7:30 बजे ख़त्म हो गया। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा है कि 14 फरवरी की शाम 4:30 तक किसी भी हलके में कोई अवामी इज्तिमा या जलसा नहीं किया जाएगा। 12 फरवरी बरोज जुमेरात सुबह 7:30 बजे बांग्लादेश में वोट डालने का सिलसिला शुरू होगा, जो शाम 4:30 बजे तक मुसलसल जारी रहेगा। उस दिन मुल्क के 300 पार्लिमानी हलकों में से 299 में बैक वक्त वोटिंग होगी। शेख हसीना वाजिद की इख्तिदार से बेदखली के बाद ये पहला मौका है कि मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं। शेख हसीना की जमात अवामी लीग इन इंतखाबात में हिस्सा लेने से कासिर है, क्योंकि उसकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। मजमूई तौर पर तकरीबन 2000 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 250 से ज्यादा आजाद उम्मीदवार हैं। बांग्लादेश की इस वक्त क्या सूरत हाल है, देखिए ढाका से आजाद मुशीरी की इस रिपोर्ट में, जिसे पेश कर रही हैं खतीजा आरिफ। ये मनाजिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के एक जलसे के हैं। ऐसे मनाजिर जिनका 2 साल पहले तक तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। शेख हसीना की हुकूमत के दौरान BNP के सरबराह तारिक रहमान खुद साख्ता जिलावतनी में थे और पार्टी के हज़ारों कारकुनों को कैद किया गया था। पार्टी ने गुज़िश्ता इंतखाबात का बॉयकॉट भी किया था, लेकिन 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में BNP कामयाबी की उम्मीद कर रही है। यहाँ मौजूद बहुत से लोगों की तरह आसमा का कहना है कि वो 2 दहाइयों में पहली बार वोट डालेंगी। हम पहले वोट नहीं डाल सकते थे, हमें धमकाया जाता था। हम अपने मुल्क को खूबसूरत और खुशहाल देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर रोजगार चाहते हैं। फाशिस्ट हसीना ने कभी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं होने दिए, लेकिन अब वो जा चुकी हैं तो हम आज़ादी से वोट डाल सकते हैं। इस हकीकत के बावजूद कि ये वोटर्स गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान बाहर नहीं निकल सके थे, BNP अब भी एक ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड और पुरानी सियासी जमात है। उसके बरक्स नई तुलबा सियासी जमात NCP यानी नेशनल सिटीज़न पार्टी की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीद इस्लाम, जो इस एहतजाजी तहरीक के सरबराह थे, अब NCP की क़यादत कर रहे हैं। एक नई सियासी जुमात होने की वजह से हमारे लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। हमारा क़याम एक बड़े पैमाने पर होने वाली एहतजाजी तहरीक से हुआ। कम हिमायत की वजह से उन्हें एक मुतनाज़ा फैसला करना पड़ा, जमात इस्लामी के साथ मिलकर एक मल्टी पार्टी अलायंस बनाने का। ये एक इस्लामी जमात है जो माजी के मुकाबले में अब निस्बतन सेक्युलर मौक़िफ़ अपना रही है। हर शख्स, चाहे इसका मज़हब कुछ भी हो या किसी भी तफरीक के बगैर, बांग्लादेश में यकसां हकूक़ हासिल करेगा। NCP के कई अरकान ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है, जिनमें से एक तस्नीम जारा भी हैं। वो अब एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। मेरी तशवीश ये है कि जब हम पुरानी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करते हैं तो ये वो वजह नहीं रहती जिसके लिए हम जैसे लोग सियासत में आए थे। पुरानी सियासी जमातों से अवाम का एतमाद उठ चुका है। इन इंतखाबात पर शेख हसीना का सिर्फ एक साया समन ला रहा है, क्योंकि उनकी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। हमने शेख हसीना की जमात के एक कारकुन से मुलाकात की जो इस वक्त रूपोश है। अवामी लीग के बगैर आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात मुमकिन नहीं। अवामी लीग के कुछ लोगों से गलतियां ज़रूर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज भी शेख हसीना और अवामी लीग के लिए अवाम के दिलों में मोहब्बत मौजूद है। कुछ लोगों के लिए ये एक जमात को अंधेरे में धकेलने के मुतरादिफ है, जबकि दूसरों के नज़दीक ये एक ऐसे मुस्तक़बिल की राह हमवार करता है जो इम्कानात से भरपूर है और माजी से निजात की उम्मीद दिलाता है।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के वकील सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सलमान सफदर की तैनाती उस दरखास्त की मद में की जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान को दी जाने वाली सहूलतों और उनकी हालत जार से मुतल्लिक पूछा गया था। अदालत ने सलमान सफदर को हिदायत की कि वो अडियाला जेल जाएं और इमरान खान की जेल में हालात जार के बारे में तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने यह हुक्म भी दिया कि बैरिस्टर सलमान सफदर साबिक वजीर आजम को दस्तयाब सहूलियात के बारे में तहरीरी रिपोर्ट दें। दूसरी जानब अटॉर्नी जनरल ने 5 अगस्त से 13 अगस्त 2023 की रिपोर्ट अदालत में पेश की। उन्होंने अदालत को बताया कि ये रिपोर्ट अटक जेल में कैद के दौरान की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सलमान सफदर को अदालती नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि सलमान सफदर को इमरान खान से मुलाकात में कोई मसला दरपेश नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर से कहा कि अगर कोई मसला होता है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि अदालत रिपोर्ट देखने के बाद परसों फैसला करेगी। समाअत के दौरान इमरान खान के दूसरे वकील लतीफ खोसा रोस्ट्रम पर आ गए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे भी इमरान खान से मुलाकात की रसाई नहीं दी जा रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने सरदार लतीफ खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने ऑर्डर कर दिया है, सलमान सफदर आज जाएंगे। सामीन, तकरीबन 2 दहाइयों बाद पाकिस्तान के शहर लाहौर में बसंत का त्यौहार मनाया गया, जिससे लाहौर शहर की फिजा रंगों, ढोल की थाप और खुशियों से भर गई। अंदरूने शहर की गलियों से लेकर छतों तक लोग पतंगबाजी में मसरूफ दिखाई दिए। ये त्यौहार 2007 में जानलेवा हादसात, तेज डोर हवाई फायरिंग और छतों से गिरने के वाकयात के बाइस पाबंदी का शिकार हो गया था, जिसके बाद एक पूरी नस्ल बसंत की खुशियों से महरूम रही। लेकिन पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने सख्त हिफाजती इक़दामात के साथ बसंत को महदूद पैमाने पर बहाल किया। खतरनाक डोर, बड़ी पतंगों और कबल अज वक्त फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई, जबकि पुलिस ड्रोन्स, CCTV कैमरों और इजाफी नफरी के जरिए निगरानी की गई और मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती सलाखें भी मुतारिफ कराई गईं। बसंत की वापसी से न सिर्फ सकाफती रिवायत जिंदा हुई है, बल्कि पतंग फरोशों, कारीगरों, होटलों और छोटे कारोबारों को भी माशी फायदा पहुंचा है। मगर सवाल यह है कि सियासी तौर पर पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने इस रिस्क से क्या सियासी फायदा हासिल किया? इस सवाल का जवाब जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर आमिर इलियास राना से। देखिए, ये सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा जुआ था मरियम नवाज के लिए, और रिस्क था जैसे आपने कहा, और बोल्ड स्टेप तो था, लेकिन जुआ इसलिए था कि खुदा ना खास्ता अगर डोर फिर जाती तो फिर इनकी सियासत भी बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाती। कि जितना इमेज अच्छा उन्होंने बहैसियत एक चीफ मिनिस्टर बनाया था, वो सारा दाव पे था। और वो मैं समझता हूँ अल्लाह का बड़ा करम रहा, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो मर्जी हो, लेकिन अल्लाह के करम के साथ कि वो पाए तकमील तक पहुंची बसंत, और वो एक इंटरनेशनल इवेंट बना। वो लोकलाइज नहीं रहा, वो बसंत पंजाब की नहीं रही, वो पूरे पाकिस्तान पे नहीं, इंटरनेशनली हुई। और पाकिस्तान का एक बड़ा सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया कि यहाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि या यहाँ हड़तालें होती हैं या दहशतगर्दी होती है। इस किस्म का काम जो आलमी सतह पे जिसको आप कहें कि जी कल्चरली हमें कहीं अच्छा साबित करता है, वो हमारे पास मफकूद था। ये एक ऐसा था कि जिसके अंदर दुनिया भर से पाकिस्तानी भी आए और हमारे गैर मुल्की मेहमान भी आए। अच्छा, अब आप देखें कि जब बरतानवी हाई कमिश्नर हों, अमेरिकन चार्ज डी अफेयर्स आ रहे हैं, वो एम्बेसडर के लेवल पे ही मौजूद हैं, वो मौजूद हों और फुल टाइम वो बसंत मना रहे हों, तो एक इमेज कहने की जरूरत नहीं बनती, वो सामने आता है। तो वो तो बड़ा अच्छा गया। ठीक है, एक बड़ा हादसा इस्लामाबाद में हुआ, अल्लाह ताला सबको अपनी जवार रहमत में जगह दे, खौफनाक हादसा था। और वो कोशिश यही थी कि जो इमाम बारगाह पे हमला हुआ कि वो सबूताज किया जाए, जो तासुर पाकिस्तान के लिए अच्छा बना है, चाहे वो इंटरनेशनल दौरों के हवाले से हो या वो हम बसंत को एक खास हद तक उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और मरियम नवाज ने उसमें भी बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि खुद को पीछे हटा लिया सरकारी सतह से पंजाब गवर्नमेंट ने, और लोगों के ऊपर छोड़ दिया, और लोगों ने उसे भरपूर मनाया। अब देखा यह जाता है कि उसमें हुआ क्या। उसके अंदर अलीमा खान के बेटे का आना और आज अलीमा खान का ये तस्लीम करना कि जी मैं तो खुद भी मनाती रही, उन सब का तो करिया करम कर दिया जो पीटीआई के नाम पे डॉलर कमा रहे हैं। मेरे हिसाब किताब से उनका बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का भी तासुर गया, और लोगों को इंटरेक्ट कराने में, लोगों को, और जिस तरीके से वो खुद ब खुद ट्वीट्स पे आ रही थी, लोगों को जवाब दे रही थी, उसने फिर लोगों को समझा कि हमारी चीफ मिनिस्टर हमारे साथ खुद बात कर रही है। पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के बाइकाट का फैसला
उस वक्त तब्दील हो गया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात हुए। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इन मुशावरतों के नताइज से वजीर आजम शहबाज शरीफ को आगाह किया, जिसके बाद दोस्त मुमालिक खसूसन श्रीलंका, बांग्लादेश और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरखास्तों पर पाकिस्तान ने मैच खेलने की मंजूरी दे दी। आईसीसी ने यकीन दहानी कराई कि बांग्लादेश पर मैच न खेलने की सूरत में कोई जुर्माना आयद नहीं होगा और आइंदा इवेंट्स में इसे मेजबानी के मौके भी दिए जाएंगे। श्रीलंका के सदर ने इस फैसले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोन पर शुक्रिया अदा किया, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी इसे क्रिकेट के मफाद में एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। इसी तरह सिफारती दबाव, आईसीसी की जमानतों और इलाकाई मफादात के बाइस पाकिस्तान ने बाइकाट का फैसला वापस लेकर 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच खेलने पर आमादगी जाहिर कर दी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो इंडिया के खिलाफ अब मैच खेलेगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पीसीबी को इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में खेलने की इजाज़त देते हुए कहा है कि ये फैसला दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया है। इस ऐलान से पहले पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पीसीबी, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर के साथ मीटिंग में किए गए फैसले से इन्फॉर्म किया था। तो पीसीबी और आईसीसी की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का फैसला बदल दिया? आईसीसी ने एक्स पर एक पोस्ट में पाकिस्तान के फैसले को कंफर्म किया और कहा कि कामयाब बातचीत के बाद पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपने तमाम मैच खेलेगा और ये फैसला इस जज्बे में किया गया है कि आईसीसी के तमाम मेंबर्स इसके इवेंट्स में टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन के मुताबिक अपने वादों का एहतराम करेंगे। बांग्लादेश के इस टूर्नामेंट में ना खेलने पर आईसीसी का कहना था कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इसके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ना हो और इस टूर्नामेंट में हिस्सा ना लेने के फैसले पर बांग्लादेश पर कोई पेनल्टी आयद नहीं होगी। इसके साथ साथ आईसीसी का कहना था कि बांग्लादेश को 2031 के वर्ल्ड कप से पहले एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने का मौका दिया जाएगा। श्रीलंका के सदर ने पाकिस्तान के इस ऐलान पर इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने इस बात को यकीनी बनाया है कि खेल जारी रहे और ये कि श्रीलंका इंडिया और पाकिस्तान की कोशिशें नहीं भूला जब 1996 के वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने कोलंबो में मैच खेले, जबकि दूसरे ममालिक सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से दस्तबरदार हो गए। इस ऐलान से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि वो इंडिया के खिलाफ अपना मैच खेले। एक बयान में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस अरसे के दौरान पीसीबी ने बेहतरीन यूनिटी दिखाई है। बीसीबी के सदर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हम इस दौरान बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिशों से बहुत मुतासिर हैं। हमारा भाईचारा लंबे अरसे तक फले फूले। सामीन, मुर्गी को पकाने से पहले धोना चाहिए या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोशल मीडिया पर बार बार बहस छेड़ देता है। मगरबी ममालिक की सरकारी फूड सेफ्टी हिदायत वाज़े तौर पर खबरदार करती हैं कि कच्ची मुर्गी को ना धोया जाए, क्योंकि इससे साल्मोनेला और कैम्पाइलोबैक्टर जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पानी के छींटों के जरिए बावर्ची खाने की सतहों और दीगर ग़िज़ाओं तक फैल सकते हैं। फूड साइंसदानों के मुताबिक मुर्गी को धोने से जरासीम खत्म नहीं होते, बल्कि उनके फैलने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि बैक्टीरिया को मारने का वाहिद मुअस्सर तरीका मुकम्मल तौर पर पकाना है। आलमी इदारा सेहत भी यही मशवरा देता है कि कच्ची मुर्गी को ना धोया जाए, हाथ और बर्तन अच्छी तरह साफ किए जाएं और मुर्गी को अच्छी तरह पकाया जाए। दूसरी जानिब एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन और जनूबी अमेरिका की कई सकाफतों में मुर्गी धोना सफाई और रिवायत का हिस्सा समझा जाता है। ताहम माहिरीन खबरदार करते हैं कि चाहे मुर्गी बर्तन में धोई जाए या लीमू और सिरके के साथ, इस अमल में सेहत का खतरा फिर भी मौजूद रहता है। How many times are you peeling a vegetable, you drop it in the sink, and you just pick it up and go on, and so at that point you've cross-contaminated your vegetables. फार्मूला 1 को दुनिया की तेज तरीन और महंगी मोटर स्पोर्ट कहा जाता है, मगर रेसलिंग की एक और शक्ल फार्मूला स्टूडेंट है, जो बज़ाहिर कम चमकदार मगर कहीं ज्यादा मेहनत, तख्लीक और अमली इल्म की मुतकाजी होती है। हाल ही में पाकिस्तान में तुलबा ने मुल्क के पहले फार्मूला स्टूडेंट तर्ज के मुकाबले में शिरकत की, जहां नौजवान इंजीनियर्स ने अपनी छोटी रेसिंग कारें खुद डिजाइन की और उन्हें ट्रैक पर आजमाया। इस इवेंट का एहतमाम साबका रेसिंग से वाबस्ता अफराद ने किया, जो माजी में अपनी तैयार करदा गाड़ियों के साथ बैरून मुल्क मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे। मुंतजमीन के मुताबिक इस मुकाबले का मकसद पाकिस्तान में इंजीनियरिंग तालीम को किताबी दायरे से निकाल कर अमली और तख्लीकी समत देना है। मजीद तफसील फाखिर मुनीर से। Welcome to Formula Pakistan 2026.
दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड इवेंट. इनफैक्ट पाकिस्तान में इस तरह का पहली बार इवेंट हो रहा है. हमारे पास अराउंड 36 टीम्स हैं जो पूरे पाकिस्तान से ट्रैवल करके यहाँ ये कम्पीट करने हैं, फ्रॉम कराची टू पेशावर. इस इवेंट की ख़ास बात ये है कि ये है तो स्टूडेंट्स के लिए, मगर इसको ऑर्गेनाइज करने वाले भी स्टूडेंट्स हैं. आज के इस इवेंट के पीछे 2 से 3 साल की स्ट्रगल्स है, जिसमें ना सिर्फ स्टूडेंट्स हैं बल्कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स भी हैं जो ऑफिस के बाद भी आके काम करते थे. एंड दे स्ट्रगल्ड एंड मेड श्योर दैट दिस इवेंट केम टू अ रियलिटी. आज इस सबका जमा होने का और इस पूरी मेहनत का एक ही सिंगल गोल है, और वो ये है कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें जहाँ पे आके वो अपनी इंजीनियरिंग और स्टेम की नॉलेज को बढ़ा सकें, और वो उस तरह पीछे ना रहें जिस तरह हमें स्ट्रगल करनी पड़ी जब हम बाहर फॉर्मूला स्टूडेंट कॉम्पिटिशन के अंदर कम्पीट कर रहे होते थे. ओके, सो दिस इज़ आवर ट्रैक. जैसे हमारी F1 की स्टार्टिंग ग्रिड होती है, दिस इज़ आवर स्टार्टिंग ग्रिड. यहाँ पे वी हैव लॉन्चर्स के साथ हम गाड़ी लगाते हैं विद द कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स. एंड व्हेन वी लॉन्च, इस तरह हमारी गाड़ी लॉन्च होते हुए जाती है सामने, एंड द टीम विद द बेस्ट टाइम ऑफ कोर्स विंस. पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट तो नहीं होते, मगर दुनिया में काफ़ी होते हैं. वी हैव फार्मूला स्टूडेंट UK, फार्मूला स्टूडेंट जर्मनी, और अभी रीजन की बात करें तो फार्मूला स्टूडेंट भारत, जो कि इंडिया में काफ़ी बड़ा इवेंट बन चुका है, वो भी होता है. तो पाकिस्तान में जो एक लैकिंग थी, जो एक अनटैप्ड एरिया था, यू कैन से, दिस इज़ टू मिटिगेट दैट, ताकि ये एरिया भी हम एक्सप्लोर कर सकें और हम स्टेम में आगे जा सकें. तो दिस कॉम्पिटिशन एक्चुअली इज़ हेल्पिंग बिल्ड दैट माइंड सेट के यार दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन डू. जब हम एक ग्रास रूट लेवल से ही उनके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर इंजीनियरिंग बिल्ड करना शुरू कर देंगे, एक वो कॉन्सेप्ट आना शुरू कर देंगे, they can go ahead and implement that knowledge in universities and then in the industries. It's like a practical thing rather than theories. Because हम लोग schools and colleges में we're just going through theories and like कोई एक rectification वाला method चल रहा होता है कि बस याद करना है और पेपर में लिख कर आना है. यहाँ पर it's like practically हम उसे perform कर रहे हैं, और हमें like गाड़ी को डिज़ाइन करने के बाद हमें उसे aerodynamics से हम उसके देख रहे हैं कि हमारा air flow कैसा हो रहा है, और हमारे reactions कैसे हो रहे हैं, हमारा drag कैसा हो रहा है, thrust कैसे कर रहे हैं, और हम लोग किस तरह से drag को reduce कर सकते हैं. हम लोग फार्मूला स्टूडेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, विच इज़ यूनिवर्सिटी लेवल कंपटीशन, जो कि इंटरनेशनली होता है. तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम उस लेवल की शायद जर्मन टीम के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे. क्या हमारी जो पोजीशन है वो 10th है, 5th है, फर्स्ट क्यों नहीं है? तो वो इस वजह से नहीं है क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में आके ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं ना. वाई नॉट कि हम अपने बच्चों को स्कूल से ही ये सारी चीज़ें सिखाएं कि ये भी एक डोमेन है जहाँ पर आप अपनी स्टडीज़ के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली ये आपके लिए बहुत सारे करियर के ऑप्शंस खोल देता है कि भैया हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है. बहुत ज़्यादा हमें ये पता चला कि एक गाड़ी को डिज़ाइन करना, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. प्रैक्टिकल में ज़्यादा मज़ा आता है थ्योरी से. थ्योरी में मतलब पढ़ना होता है और उसको याद करना होता है, और जो टीचर्स करवा देते हैं बस उसी को पढ़ना होता है. लेकिन ये जो प्रैक्टिकल है इसके लिए हमें मतलब खुद मेहनत करनी पड़ती है, और खुद अगर हमें हमारे अंदर इंटरेस्ट है तो हम घर पे जाके भी इसके बारे में सर्चिंग कर रहे होते हैं. अगर किसी को टेक्नोलॉजी का शौक़ है तो आप डायरेक्टली जहाज़ नहीं बना सकते. आप मतलब अगर आप साइकिल बनाने के लिए आएँ तो दैट माइट बी अ बिट टू सिंपल. गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है, आप सीखोगे उसमें. इसमें वही इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स लग रहे हैं जो हम अगर एक असल गाड़ी बनाते हैं, एक फार्मूला 1 गाड़ी बनाते हैं, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं. बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं ऑनेस्टली. थोड़ी टाइम में ये होता है कि आई एम लाइक सडनली होपलेस, बट फिर अपने आप को याद दिलाना पड़ता है नहीं, बैक्स आर हैपनिंग. पहले राउंड में तो हमारा DQ आ गया था, क्योंकि फिर हमारा फ्रंट विंग टूट गया था. फिर दूसरे राउंड में हमारा रेयर विंग टूट गया था, लेकिन फिर तीसरे राउंड में हमने 1.29 स्कोर किया था, फास्टेस्ट था. यकीन नहीं हो रहा. मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है. We had a good journey throughout the whole competition, and we won't be discouraged by not winning any award, but we will try to overcome our mistakes, any things that we could have achieved, the things उनको achieve करना चाहेंगे हम in the next competition of Formula Pakistan and win that one inshallah.
ایک چیز جو ہم اور بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں دیٹس ڈیفینیٹلی دا اسٹوری بیہائنڈ دس جو کہ comes from rejection, comes from setbacks and comes from a place جہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. It will actually be the first time in Pakistan کہ ایسا بیچ پروڈیوس ہوگا جس نے FNM schools جیسا ایک کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ جو بچے اس کمپٹیشن میں آئیں ان کو کبھی یہ کمی نہ محسوس ہو کہ ہمیں کیوں نہیں اپارچونیٹی ملی. Why were we not the lucky ones? They are now the lucky ones. سامعین، کرکٹ کو طویل عرصے تک جینٹل مین کا کھیل کہا جاتا رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کے فارمیٹس بدلے اور اس میں سرمایہ کاری بڑھی، ویسے ویسے سیاست کی مداخلت بھی نمایاں ہوتی چلی گئی. خصوصاً بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ مقابلے اکثر کھیل سے زیادہ سیاسی بیانیے کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں. اب T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی ایسے ہی خدشات اور تنازعات سامنے آئے ہیں. انہی حالات پر اپنی خصوصی رائے دے رہے ہیں پاکستان کے سینئر صحافی وسعت اللہ خان اپنے کالم بات سے بات میں. اتنا بھولا تھا وہ انسان جس نے کرکٹ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جنٹل مینز گیم ہے. ویسے اس نے اپنے حساب سے ٹھیک ہی کہا ہوگا، کیونکہ تب بس 6 دن کے ٹیسٹ میچز ہوتے تھے. ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ ٹیسٹ میچ کی کوک سے آگے چل کے 50 اوورز، 20 اوورز اور پھر 10 اوورز کے بچے جنمیں گے اور وائٹ ڈریسنگ روم کے پچھلے دروازے سے پیسہ بھی دبے پاؤں اندر آ جائے گا. پیسہ آئے گا تو پیچھے پیچھے جوا اور سٹا بھی چلا آئے گا، اور پھر کارپوریٹ کلچر پچ کے چاروں اور کوئی 1 انچ بھی نہ چھوڑے گا جو بھانت بھانت کے وگیاپنوں سے نہ بھرا ہو. اور جب میدان میں جگہ نہیں بچے گی تو یہی وگیاپن کھلاڑیوں کی کمر، بازو اور سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے، اور یہ سب کچھ میڈیا کیمروں کے مادھیم سے کروڑوں آنکھیں دیکھیں گی. پیسے کی بوندا باندی بارش میں بدل جائے گی، میچوں اور ٹورنامنٹس کی منڈی لگے گی، سب کمائے کھائیں گے، اور ایک دن کرکٹ گیم سے زیادہ ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری کے طور پہ پہچانا جائے گا. جنٹل مینز دن میں بھی کھیلیں گے اور رات میں بھی گیم جمائیں گے. جیسے پہلے زمانوں میں زیادہ وزن اٹھانے والے غلاموں اور تیز دوڑنے والے گھوڑوں کو منہ مانگے داموں بیچا اور خریدا جاتا تھا، ویسے آج کے امیر لوگ کلبز کو کھلاڑیوں سمیت خرید کے انہیں وزٹنگ کارڈز بنا کے پاور کوریڈورز میں دندناتے پھرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ورلڈ کپ سے لے کے ایشز، ایشیا کپ اور ٹرائی نیشن ٹورنامنٹس تک جتنے بھی بھانت بھانت کے میلے سجتے ہیں وہ میرے آپ کے منورنجن کے لیے ہیں؟ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. ان میلوں ٹھیلوں کو ICC نام کا جو انجن کھینچتا ہے اس میں بزنس آئل ڈلتا ہے، اور یہ انجن ہر دیش کے کرکٹ بورڈز کو ڈبوں کی طرح مارکیٹنگ کی پٹڑی پہ کھینچتا ہے. کبھی کرکٹ خالص گیم ہوتا ہوگا، اب تو یہ گراؤنڈ سے زیادہ سمے ڈومیسٹک اور فارن پالیسی کے شطرنجی بورڈ پہ گزارتا ہے. آج پاکستان اور بھارت جس طرح اپنے راجنیتک جھگڑے کرکٹ پچ تک لے آئے ہیں، اس کی شروعات دبئی میں ہاتھ نہ ملانے یا پھر ایشیا کپ ٹرافی وصول کرنے سے انکار سے نہیں ہوئی، بلکہ 1965 کے یدھ سے ہوئی. اس کے بعد اگلے 14 ورش کوئی آپسی کرکٹ نہیں ہوئی، مگر 1979 میں بھارت پاکستان کرکٹ کو راجنیتی کے کھونٹے سے آزاد کیا گیا، لیکن 2013 کے بعد سے بلے اور کلاشنکوف کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا گیا. خدا خدا کر کے کرکٹ کو لگی سٹے کی دیمک پہ کسی حد تک قابو پایا گیا تو پھر کرکٹ ڈریسنگ رومز میں ریموٹ کنٹرول اپکرن بھیج دیے گئے. کون سا میچ کس سے کیسے کھیلے گا اور میچ شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں ٹیم کا سپورٹس مین پروٹوکول اور ویوہار کیا ہوگا، یہ سب اب مینیجر اور کپتان طے نہیں کرتے، بلکہ ان دونوں کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا کہیں اور سے اترنے والا آدیش تھما دیا جاتا ہے.
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ باقی ٹیموں کے کپتان تو گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، مگر بھارت اور پاکستان کے کپتان دلی اور اسلام آباد کی ریموٹ کنٹرول باؤنڈری میں کھیلتے ہیں۔ شکر ہے کپتان مہندر امرناتھ، حفیظ کاردار، حنیف محمد اور بشن سنگھ بیدی یہ سب تماشا دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے۔ شکر ہے کہ کپتان کپل دیو، عمران خان، میاں داد گواسکر اور سچن بالکل ٹھیک سمے پہ ریٹائر ہو گئے، ورنہ وہ بھی سوریا کمار یادو اور سلمان علی آغا کی طرح ہر صبح ایک نئے آدیش کے عذاب سے گزر رہے ہوتے۔ بائی دا وے، اگر کسی کو اس شریف آدمی کا عطا پتہ ملے جس نے 200 ورش پہلے کرکٹ کو جنٹل مینز گیم کہا تھا تو پلیز مجھے بھی بتائیں تاکہ میں اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکوں۔ اور آشوتوش گوارکر اور عامر خان صاحب، آپ نے اچھے سمے پہ لگان فلم بنا لی۔ آج ہم سب کرکٹ کے نام پہ جو لگان بھر رہے ہیں اس پہ بھی کچھ بنا کے دکھائیں تو آپ کو دھرندر مانے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سفارتی عمل جاری رہے گا اور عمان میں ہونے والے مذاکرات پر ترکی کی ناراضگی کی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تہران میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مسقط میں امریکی وفد کے ساتھ ہونے والی مختصر اور براہ راست بات چیت سے یہ تاثر ملا کہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے گا۔ ترک حکومت کی ناراضی سے متعلق سوال پر ایرانی ترجمان نے کہا کہ مسقط میں مذاکرات کا انعقاد کسی بھی ملک کے لیے تشویش کی وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کے کئی ممالک مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار تھے، مگر فریقین نے باہمی مشاورت سے عمان کا انتخاب کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ امریکہ اور کینیڈا کو ملانے والے ایک پل کو کھولنے سے روک دیں گے جب تک کہ واشنگٹن کو ہر اس چیز کا مکمل معاوضہ نہ مل جائے جو اس نے اپنے شمالی پڑوسی یعنی کینیڈا کو دیا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر یہ لکھا کہ گورڈی ہاؤ انٹرنیشنل برج جو کینیڈا کے صوبے انٹاریو کو امریکی ریاست میشیگن سے جوڑتا ہے اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک اوٹاوا امریکہ کے ساتھ وہ انصاف اور احترام نہ کرے جس کے ہم مستحق ہیں۔ اس منصوبے کی ویب سائٹ کے مطابق یہ پل کینیڈا کی حکومت کے فنڈ سے تعمیر ہو رہا ہے، لیکن عوامی ملکیت کینیڈا اور میشیگن دونوں کے پاس ہوگی۔ یہ واضح نہیں کہ ٹرمپ اس کے افتتاح کو کس طرح روک سکتے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ مذاکرات فوراً شروع ہوں گے، مگر تفصیل نہیں بتائی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے موجودہ مالی سال کے دوران جنوری کے مہینے میں پاکستان کو 3 ارب 50 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق یہ رقم گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 15% سے زائد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں ترسیلات زر کا مجموعی حجم 23.2 ارب ڈالر رہا، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 11.3% زیادہ ہے۔ جنوری میں سب سے زیادہ ترسیلات سعودی عرب سے موصول ہوئی، جہاں مقیم پاکستانیوں نے تقریباً 74 کروڑ ڈالر پاکستان بھیجے۔ متحدہ عرب امارات سے قریباً 70 کروڑ ڈالر، برطانیہ سے 57 کروڑ ڈالر اور امریکہ سے 30 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان آئی ہیں۔